Okay, so good morning to everyone. I'm audible. Yes, sir. Okay. So last class we discussed about query optimization, and we already discussed some example also, how to calculate, how to minimize. That means how to, in which order we follow, then will take less time. Okay. So we already discussed query optimization. So today we'll discuss how to handle phrase query. सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं सर, बहुत आपका भी आवाज लेकिन नहीं आ रहा है, काट काट के आ रहा है। मे बी एनी अदर स्टूडेंट? आवाज आ रहा है सर। देखना थोड़ा थोड़ा उधर भी होता है प्रॉब्लम, ठीक है। अभी सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, so how to handle phrase query? So let's see. So phrase query, simply when we search in the search engine or Google search engine, okay. जब भी कोई चीज सर्च करते हैं, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एवरी टाइम हम लोग एग्जैक्टली जो है उसको
उस वर्ड को और वो फ्रेज को हम लोग सर्च करें। सपोज one example is given. Suppose you want to able to answer the query such as Stanford University as a phrase. तो यहाँ पे देखो inverted comma within that complete ये as a phrase. But as a user जब हम लोग कोई भी चीज सर्च करते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एग्जैक्टली जो है जो सेंटेंस है, सपोज आई वेंट टू यूनिवर्सिटी एट स्टैनफोर्ड, तो वो एग्जैक्टली नहीं मैच करता है ना। तो ये सिस्टम जो है यहाँ पे जो सर्च इंजिन है कैसे उस चीज को मतलब एग्जैक्टली यूजर तो हम लोग जो सर्च करते हैं तो लेकिन हम लोग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हम लोग को सर्च करने से मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो फ्रेज क्वेरी है वो कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, तो हैंडल करने का दैट मीन्स कैसे वो हैंडल होता है फ्रेज क्वेरी। तो फ्रेज क्वेरी क्या है ना, सिंपल यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल दिया है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एज ए फ्रेज, तो ये विद इन द इन्वर्टेड दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ये है। ठीक है, तो the concept of phrase query has proven easily understood by user, one of the few advanced search idea that works. Many more query are implicit phrase query. So for this, अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, these are the problem। क्या क्या हो रहा है ना, बोल रहे हैं कि हम लोग एग्जैक्टली जो मैच नहीं करता है उसके बाद कुछ है कि थोड़ा बहुत करते हैं, तो अब उसको इस तरह से हाउ टू हैंडल एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको। someone is please mute yourself। Okay, for example, suppose index consecutive pair of terms in the text as a phrase। For example, suppose one text is friends, romance, countrymen would generate the by word। तो phrase का फॉर्म में कैसे जाते हैं ना हम लोग, suppose these are the terms friends, romance, countrymen would generate the by word। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, generate by word। by word means टू वर्ड लेके, because one of the reason is suppose if you are individually, if we will find out individual, suppose friend, till now we individually we find out the terms which document is that means one term is available in the document or not। अब क्या है कि फ्रेंड, रोमांस, कंट्रीमैन वुड बी जनरेट बाय वर्ड। बाय वर्ड मीन यहाँ के दो दो वर्ड लेके, जो फ्रेंड्स, रोमांस, रोमांस, कंट्रीमैन, so this is called by word। by word, so by word index, by word index means index every consecutive pair of terms in the text as a phrase। So for example is given here, friends, romance and countrymen would generate the by word। How? Now suppose three words, three terms are there, now we can pair of two, so consecutive pair of two means friends, romance, romance, countrymen, so each of this by word is now dictionary term। अब ये क्या हुआ जब now these are the dictionary term, so two word phrase query processing is now immediate। इसका मतलब अभी टिल नाउ इंडिविजुअली हुई सर्च इन द डिक्शनरी, नाउ अब बोल रहे हैं कि दो दो वर्ड करके जो कंजिक्यूटिव, so consecutive pair of terms in the text as a phrase। So now this one is a phrase, romance, countrymen, so in this way we can search। So now problem is इसमें क्या प्रॉब्लम होता है,
यस, अब ये हुआ बाय वर्ड। अब बाय वर्ड में कैन बी ब्रोकन इनटू, सपोज यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, पोलो, ऑल्टो। So now can be broken into Boolean query on by word. तो दो दो करके हम लोग इसको बाय वर्ड कर सकते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी पोलो एंड पोलो ऑल्टो। So these are the longer phrase query. So longer phrases are processed as we did with wildcard and Stanford University. One example is given. Suppose in Stanford University, Palo Alto can be broken into Boolean query on by word. तो इसको भी अगर बाय वर्ड में करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? सो विद मेन प्रॉब्लम इज एक्चुअली विद इन द डिक्शनरी, actually when we suppose dictionary and positional index, so mainly process that means processing is happen in main memory. So within the main memory space is required. अगर वो स्पेस नहीं होगा, यहाँ पे अगर बायवर्ड इंडेक्सिंग यूज करेंगे तो देखो रिपीट हो रहा है, दैट मीन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी देन यूनिवर्सिटी पोलो, तो ऑब्वियसली साइज जो है उसके लिए क्या लेगी, रिक्वायरमेंट इज मोर, क्योंकि एवरी टाइम विल रिप्लेस, रिप्लेस मीन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अगेन वही यूनिवर्सिटी पोलो, जो डिक्शनरी में जो टर्म यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स ऑब्वियसली साइज उसके लिए ज्यादा चाहिए विद इन द मेन मेमोरी। तो डिक्शनरी का साइज फिर ज्यादा हो जाएगा, डिक्शनरी का साइज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बायवर्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो दोनों करके एक एक टर्म यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसमें इसमें क्या हो रहा है, साइज ऑफ द डिक्शनरी का साइज फिर ज्यादा हो जा रहा है। So without the dog, we cannot verify the dogs matching the above boolean query to contain phrase. अच्छा, और एक चीज, और एक क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पे, इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम कि वो जो दैट मीन्स यूजर का रिक्वायरमेंट है जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट देगा, इज नॉट पॉसिबल कि एवरी टाइम वो, दैट मीन्स समटाइम्स विल गेट द फॉल्स पॉजिटिव, दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पे जो बायवर्ड का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम हम लोग जो विल गेट द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो ये एक प्रॉब्लम है इसका बायवर्ड इंडेक्सिंग का। तो एक्सटेंडेड बायवर्ड, अब वो हुआ सिंपल बायवर्ड। सिंपल बायवर्ड में क्या किए, अभी तक का जो मैंने बताया आप लोग को, क्या बताया कि आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फ्रेज क्वेरी। ओके, so phrase query, how to handle phrase query. So first of all we try understand what is phrase query. So example is given, suppose this one Stanford University as a phrase query, that means phrase as a phrase. So now one sentence यहाँ पे दिया हुआ है, I went to university at Stanford. So is not match, क्योंकि हम लोग का जो phrase है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, बट नाउ बिकॉज यूजर एज ए यूजर इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एग्जैक्टली वो टर्म को सर्च करेंगे। आई वेंट टू यूनिवर्सिटी एट स्टैनफोर्ड इज नॉट मैच, ऑब्वियसली वहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं आई वेंट टू यूनिवर्सिटी एट स्टैनफोर्ड इज नॉट मैच। So the concept of phrase query has proven easily understood by user. One of the few advanced search idea that was mainly main क्या है, एक्चुअली इतना सारा जो सर्च इंजन बना रहे हैं, यूजर कैन इजीली फाइंड, मतलब यूजर कोई भी सर्च करेंगे इजीली विल गेट द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो जो डिजाइन हो रहा है सर्च इंजन का, तो ऑन द इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस, दैट मीन्स यूजर फ्रेंडली, यूजर कैन इजीली, और यूजर का जो सोच एज ए सिंपल कोई भी देंगे लेकिन वो जो है एग्जैक्ट जो है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं ना, एक वन कंसेप्ट आया जो बायवर्ड इंडेक्स, जो बायवर्ड जो फर्स्ट है बायवर्ड इंडेक्स।
तो बायवर्ड जो फर्स्ट एक है जो इसको बोल रहे हैं बायवर्ड फर्स्ट एक। तो इंडेक्स वेरी कंजिक्यूटिव एवरी कंजिक्यूटिव पेयर ऑफ टर्म इन द टेक्स्ट एज ए फ्रेज। तो यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज वन टेक्स्ट, एक टेक्स्ट है, तो कंटिन्यूअस टेक्स्ट में क्या है, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन, वुड जनरेट द बायवर्ड। कैसे जनरेट हो रहा है बायवर्ड, ना कंजिक्यूटिव पेयर ऑफ टर्म्स। Consecutive pair of terms means friends, Romans, then Roman countrymen. So in this way, so would generate the byword. ठीक है, तो each of these byword is now dictionary term. Till now individual term ले रहे थे, now each of these byword, so now friends Roman is a dictionary term. Okay, yes, Romans countrymen is a dictionary term. Yes. So now this thing is clear. Friends Roman and Roman's countrymen is a dictionary term. Because if you remember, when we that means when if you remember term document incidence matrix or incident matrix, so individual term we are taking individual, suppose Brutus, then California. So these are the dictionary terms. But now in that case, now each of these byword is now dictionary term. So friends Roman, Roman's country. So these are the dictionary terms. So now two-word phrase query processing is now immediate. So two-word phrase query. Now longer phrase query. So longer phrase query as process as we did with wildcard. So another one is a Stanford University follow also can be broken into the Boolean query on byword. So Stanford University, University follow and follow. So now in that case, so without, so that means in this way we can make the dictionary term by word. Now what are the issues? So can have false positive, sometimes will get false positive. So that's why next another thing is a extended by word. Extended by word means here parse the index text and perform parts of speech tagging. So parts of speech tagging. So post parts of speech tagging. So here the bucket in the term into say noun. So here we are taking noun. Noun means suppose one example is given. Noun and other article and preposition are we are taking X. So noun means N and article preposition is X. For example, suppose we extended by word. Extended by word means suppose each such extended byword is now made a term in the dictionary. Suppose catcher in the rye. So catcher in the rye. So here two nouns, catcher and rye, is a novel suppose. And in the means यहाँ पे article और preposition है. So article and preposition के we are taking X. So query processing parse it into N and X. बट यहाँ पे क्या होगा, लुकअप इन द इंडेक्सेस कैचर राइट। यहाँ पे डिक्शनरी जो है एक्सटेंडेड डिक्शनरी, so extended byword is now made in a term in the dictionary, but lookup in the index में क्या लुक करेंगे, कैचर राइट, उसको यहाँ पे देखना नहीं। तो सेगमेंट क्वेरी इनटू एनहेंस बायवर्ड, क्वेरी प्रोसेसिंग क्या है ना, पार्स इट इनटू एन एक्सेस। तो एक्सटेंडेड बायवर्ड में यहाँ पे जो इंडेक्स में जो लोग करेंगे वो नाउन का जो है, जो बायवर्ड इंडेक्स इसलिए बोल रहे हैं, इसमें जो नाउन है उसको कंसीडर कर रहे हैं और उसको जो आर्टिकल और प्रीपोजिशन है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब इसमें क्या इश्यूज है, इश्यूज ऑफ बायवर्ड इंडेक्सिंग ना, समटाइम्स false positive as noted before, I already mentioned. अच्छा, another thing is index blow up due to bigger dictionary.
अब डिक्शनरी साइज इसमें बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रिपीट हो रहा है बायवर्ड इंडेक्सिंग में, जो हम लोग दो दो करके ले रहे थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो साइज ऑफ द डिक्शनरी इज 4, ठीक है। तो ये जो साइज ऑफ द डिक्शनरी का अगर मोर होगा तो ऑब्वियसली नाउ एक्चुअली प्रोसेस जो होता है वो विद इन द मेन मेमोरी। तो नहीं तो क्या होगा, वो डिक्शनरी से वो दैट मीन्स डिस्क से। तो डिस्क में अगर डिक्शनरी का साइज बड़ा होगा तो फिर क्या होगा ना, एवरी टाइम विल ब्रॉड ब्रिंग द डेटा फ्रॉम डिस्क, ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो इशू फॉर बायवर्ड इंडेक्सिंग, वन इज अ फॉल्स पॉजिटिव और another one is index blow up due to bigger dictionary. So infeasible for more than byword, so big even for them. byword करके क्या लेंगे तो वो साइज जो है उसका ज्यादा है। And another thing, byword indexes are not the standard solution for all byword. अब कहाँ पे इसको यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये क्या होता है कि जब ऐसा हो जो ऑलरेडी फेमस, सपोज आपने जो फेमस पर्सन, अगर एम एस धोनी, अगर सपोज यहाँ पे सर्च करोगे, सलमान खान, या फिर कोई आप हीरो हो, या फिर कोई आपका माइकल जैक्सन, या फिर कोई भी पॉलिटिशियन जो जो फेमस, उस जगह पे बायवर्ड इंडेक्सिंग इज ओके। बट इन जनरल केस ये कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं, बायवर्ड इंडेक्स आर नॉट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। So obviously these are the disadvantages of byword indexing. So another solution is there, that is called positional indexes. Positional indexes. So now you tell me till now, if you have any doubt, then we'll start another solution. Anyone? Just एक overall idea. ओवरऑल आइडिया हुआ कि नहीं, मैं जो अभी तक जो बताया। Yes, I'm audible. Yes, I'm audible. Anyone can give the response? Yes, no. Yes, sir. So till now I discuss about phrase query, how to handle phrase query. You have any doubt? Byword indexing. This is one solution, byword index. Yes, no, कुछ तो रेस्पॉन्स देना पड़ेगा तभी नेक्स्ट में जाएंगे। क्लियर है सर। Okay, thank you so much. Next, positional indexes. So now in the positional indexes, so this is another solution.
So in the position, store for each term the position in which token of it appear. Suppose one term is there, एक term है और number of documents containing the term. So that means suppose document 1, document 2, n number of documents are there. Within the document, position is also there. Position 1, position 2, position 3. जो inverted index और term document incidence matrix you know. अब ये पोजिशनल इंडेक्स है। तो यहाँ पे देखिए आप एक दिया हुआ है टर्म, तो टर्म के अंदर विद इन द डॉक्यूमेंट, नाउ सपोज डॉक्यूमेंट आईडी 1, तो विद इन द डॉक्यूमेंट आईडी 1 में डिफरेंट पोजिशन। सो दिस सपोज वन टर्म सपोज ब्रोटस अब वन डॉक्यूमेंट में है, सपोज विद इन एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट आईडी 1, document ID 2, document ID 3 in this way. After that, position of the term. अब ये जो है यहाँ पे पोजिशनल इंडेक्स जो है, इसमें हम लोग कैसे मतलब फ्रेज को कैसे हैंडल करें। तो ये चीज पहले देखिए, एक पहले टर्म होता है, टर्म के पर हम लोग डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट आईडी, बस विद इन द डॉक्यूमेंट आईडी पोजीशन इज आल्सो देयर। एक डॉक्यूमेंट में वो टर्म किस पोजीशन में है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो वो हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे कैसे वो निकालते हैं। तो वन एग्जाम्पल इज गिवन, यस, वन एग्जाम्पल इज गिवन, पोजिशनल इंडेक्स एग्जाम्पल, सपोज बी, तो इसका डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, 993427, ठीक है। नाउ व्हिच ऑफ डॉग, सपोज 1 2 4 5 could contain to be or not to be. So now if you see here, यहाँ पे देखिए, सपोज डॉक्यूमेंट आईडी 1, तो विद इन द डॉक्यूमेंट आईडी 1 यहाँ पे क्या है ना, इन दिस पोजीशन में वो है, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए यहाँ पे, सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पोजिशनल इंडेक्स। तो ये जो बी टर्म है बोल रहे हैं बी, ठीक है। तो अभी बोल रहे हैं कि सपोज बी का जो एक चीज देखिए यहाँ पे जो गिवन है वो बी, यस। अब बी का जो यहाँ पे किया दिया हुआ है ना, इसका आपका फ्रीक्वेंसी है, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 993427। नाउ ये डॉक्यूमेंट आईडी 1 में है 7 18 33 72 86, इन दिस पोजीशन में वो है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है 3 144 दिस। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये बी का है, नाउ एनीवन कैन से टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी। तो ये दोनों जो है ये किस में होगा, किस मतलब which ऑफ डॉक्यूमेंट आईडी में होगा, 1 2 4 5 could contain to be or not to be, to be or not to be, ये किस डॉक्यूमेंट आईडी में है। अगेन आई एम रिपीट, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, ये बी के लिए है, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि टू बी और नॉट टू बी ये किस डॉक्यूमेंट आईडी में, किस डॉक्यूमेंट आईडी में है, which of documents ID could contain to be or not to be. To be or not to be. सर नहीं समझ में आ रहा सर ये वाला। ओके देखिए यहाँ पे क्या है कि टू बी और
टू बी और नॉट टू बी, मतलब बी का पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि टू बी मतलब क्या, कि जस्ट उसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब मेरा कहने का है जो टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। तो टू बी के लिए आपको कंटिन्यूअसली 2 सीक्वेंस होना चाहिए, और नॉट टू बी के लिए कितना चाहिए, 1 2 3 4 पोजीशन। मतलब मैं यस सर। कहना, ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नॉट टू बी है, नॉट टू बी, आप देखिए यहाँ पे 433 एंड 434, मतलब 31, यहाँ पे अगर देखेंगे आप, ठीक है, कितना पोजीशन गैप में है, मतलब वो चीज़। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे अगर बोलेंगे बी सपोज 17 पोजीशन में है, तो टू दैट मीन्स यहाँ पे 16 पोजीशन होना चाहिए, देन वो टू बी होगा। 16 17 अगर रहेगा तब हम बोलेंगे कि वो टू बी जो है उस डॉक्यूमेंट में है, अगर कंटिन्यूअसली ऐसा है। और नॉट टू बी, और नॉट टू बी, इसका मतलब आपको यहाँ पे कितना चाहिए टोटल, 3 का गैप चाहिए 2 बी का बीच में। 3 का गैप चाहिए। फोर्थ और फिफ्थ में होगा सर। अच्छा, इसमें 1 में भी होगा। ओके, 1 में, 1 में नहीं होगा सर, सॉरी सर, हमको लगा 76 है वो। 1 में नहीं होगा। 1 में नहीं होगा, 2 में भी नहीं होगा। अब चांसेस देखिए 4 हाँ एंड 5 में, 4 एंड 5 में, 4 एंड 5 में क्यों हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, 4 एंड 5 में अगर देखिए 430, दैट मीन्स बीच में कितना गैप हो रहा है, बी और नॉट टू बी, 31 32 33, एक सेकेंड, हाँ, टू बी और नॉट टू बी। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, जस्ट वेट। ये 4 एंड 5 में है, अब इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, जस्ट, ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, तो आई थिंक समझ में आएगा। So यहाँ पे सपोज inverted index entries for each distinct term to be or not, ठीक है, हर एक के लिए एक पोजीशन है, ठीक है। सो मार्च, अब क्या कर रहे हैं कि मार्च देयर डॉक, so position leaves to be enumerated all position with to be or not to be, to be or not to be, ठीक है, ओके। यहाँ पे थोड़ा और अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे यहाँ पे मैं इसलिए इसको ले रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा और अच्छा से क्लियर होगा। सपोज टू बी है ना, सो टू, सो देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी 2 है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी 1 है, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले हम लोग मैच कर रहे थे, ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मैच द डॉक्यूमेंट, सो विद इन द डॉक्यूमेंट नाउ विल चेक द पोजीशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 2 मैच नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जैसे 4 विद इन द डॉक्यूमेंट 4 एंड 4, नाउ विद इन द दैट मीन्स 4 डॉक्यूमेंट आईडी 4 एंड डॉक्यूमेंट आईडी 4 में अब पोजीशन हमें चेक करना है, ठीक है। सो सपोज टू बी और नॉट टू बी, सिंपली अगर टू बी होता तो 16 इसमें है और यहाँ पे 17 पोजीशन में है, ठीक है। दिस वन इज मैच 16 और 17 जो 17 है, लेकिन हमें क्या देखना है ना, दोनों मैच करना है। यहाँ पे दोनों मैच मतलब पूरा कंप्लीट जो है, एक किसी एक को पर्टिकुलर देखने से नहीं होगा। सपोज 16 पोजीशन में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बी 17 पोजीशन 2b, क्योंकि ये पे कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन सा होगा, सबसे बेस्ट अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे 429, इसका पहले देखना है गैप 4, जैसे 29 20 30 31 32 33, यहाँ पे अगर काउंट करेंगे पूरा 423 423 टू 433 और यहाँ पे 430 टू 434, ठीक है। अब इस दोनों में देखिए आप मैच करके तो देखना यहाँ पे ये जो दोनों है आपका मैच करेंगे। देखिए यहाँ पे 423, ठीक है, तो 2b 430, ठीक है, 2b मतलब यहाँ पे जो पोजीशन है उसको हमें पहले चेक करना है, उसके बाद जो कौन सा बेस्ट ये होगा वो चीज हम लोग को चेक करना है। मार्च करने के बाद ओके, फिर से ज्वाइन करो, फिर देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है, फिर से नेक्स्ट ज्वाइन अगेन विल कंटिन्यू।